السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، خلاصۃ النحو میں آج ہم کو 29واں سبق پڑھنا ہے۔ 29واں سبق مفعول مطلق کے بیان میں ہے۔ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے اردو میں آپ پہلے سمجھ لیں۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کام کرنے کا انداز بتاتے ہیں یا اس کی تعداد بتاتے ہیں، اسی کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے۔ جیسے میں زید کی طرح بیٹھا، یا میں آپ کی طرح سویا، یا میں ہمارے ابو کی طرح بولا، انداز ہم بتاتے ہیں۔ یا پھر کسی بچے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گھوڑے کی طرح دوڑا، یا بکری کے بچے کی طرح اچھلا، کچھ بھی ہم انداز بتاتے ہیں۔ یا یوں ہی تعداد ہم بتاتے ہیں، میں 3 بار کھایا یا 2 بار کھایا، یا میں سبق 5 بار پڑھا۔ یہ جو عدد بتاتے ہیں فعل کا، یہ بھی مفعول مطلق ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں تو جیسے کتاب میں بھی مثال ہے، ضربت ضرب زید، میں زید کی طرح مارا، تو یہ جو زید کی طرح کا لفظ آ رہا ہے یہی مفعول مطلق ہے۔ ایک اور مثال کتاب میں آ رہی ہے، ضربت ضربا شدیدا، میں شدید مار مارا، یعنی سخت مار مارا، تو یہ جو سخت مار ہے یہی مفعول مطلق ہے۔ ایسے ہی کتاب میں ایک مثال آ رہی ہے، جاء زید 4 مرات، زید 4 مرتبہ آیا، تو یہ جو 4 مرتبہ ہے یہ فعل کے 4 مرتبہ ہونے کو بتا رہا ہے، یہ مفعول مطلق ہے۔ یہی ہوتے ہیں، اور ہم اپنی اردو زبان میں بھی روزانہ مفعول مطلق کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اب کتاب میں آپ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فعل کے اپنے یا اس کے ہم معنی مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ ضربت ضربا، قعدت جلوسا۔ تعریف کو سمجھ لیں، لکھ کر مثال میں سمجھا دیتا ہوں۔ 2 مثالیں ہیں، ضربت ضربا، قعدت جلوسا۔ اب تعریف دیکھ لیں، فعل کے اپنے یا اس کے ہم معنی مصدر کو، یہ ہے فعل، یہ ہے مصدر، تو یہ جو مصدر ہے یہ فعل ہی کا مصدر ہے۔ ضربن، یہ فعل ضربہ ہی کا مصدر ہے۔ یہ قعدت فعل ہے، جلوسن مصدر ہے۔ یہ مصدر یہ اس لفظ سے تو نہیں ہے لیکن ہم معنی ہے اس کا، قعدہ کا معنی بھی بیٹھا، جلسہ کا معنی بھی بیٹھا، تو جلوسن اس کا ہم معنی ہے۔ تو تعریف میں دیکھیں، فعل کے اپنے، یعنی یہ فعل کا اپنا مصدر ہے، ضربہ فعل بھی ضربہ ہے، مصدر بھی اسی سے ہے، یا اس کے ہم معنی مصدر۔ قعدہ فعل ہے، اس کا مصدر تو یہ نہیں ہے، قعودن نہیں ہے، مگر جلوسن ہے، اسی کا معنی رکھتا ہے یہ بھی۔ تو فعل کے، اب تعریف مثال میں سمجھے، فعل کے اپنے یا اس کے ہم معنی مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ اب مفعول مطلق کی اقسام دیکھ لیں۔ مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تاکیدی، نمبر 2 نوعی، نمبر 3 عددی۔ جو مفعول مطلق فعلۃ کے وزن پر ہو، یا مضاف ہو، یا موصوف ہو، وہ مفعول مطلق نوعی ہوتا ہے۔ 3 صورتیں، تینوں کی مثال دیکھیں، جلسہ جلستن، جلسہ جلستن، ضربت ضرب زید، ضربت ضرب زید، ضربت ضربا شدیدا، ضربت ضربا شدیدا۔
देखें फिर एक बार किताब में, जो मफूल मुतलक फ़िअलतुन के वज़न पर, जिलसतुन फ़िअलतुन के वज़न पर, या मुज़ाफ हो, जैसे ज़रबा ज़ैदिन, ज़रब मुज़ाफ है, ज़ैद मुज़ाफ इलैह, या फिर मौसूफ, देखिए ज़रबन मौसूफ है, शदीदन इसकी सिफत है, तीनों सूरतें हैं, ये मफूल मुतलक नौई होता है। तर्जुमा क्या होगा? जलसा जिलसतन, मैं ख़ास बैठक बैठा, जैसे जिलसतल जिलसतल कारी, कारी के बैठने की तरह बैठा, ख़ास बैठक को कहते हैं जिलसतन फ़िल के वज़न पर। ये ज़ैद के मारने की तरह मैं मारा, तो दो बार बोलने के बजाय एक बार ज़ैद की तरह मारा, ज़ैद के मारने की तरह मारा का मतलब ज़ैद की तरह मारा, मैं ज़ैद की तरह मारा, यानी ज़ैद का जो अंदाज़ है बच्चों को मारने का, उसी अंदाज से मैंने भी मारा बच्चों को, यानी मेरा मारने का स्टाइल भी वही है जो ज़ैद का है। और खूब मारा, ज़रबतु ज़रबन शदीदन, मैं मारा सख्त मार, ज़रबन मौसूफ शदीदन सिफत, सख्त मार, तो मैं सख्त मार मारा, किसी को आप बहुत सख्त मार मारें तो ज़रबतु ज़रबन शदीदन, सख्त मार मारा। ऐसे ही और भी कुछ हो सकता है, ज़रबन खफीफन, मैं हल्की मार मारा। तो ये मफूल मुतलक नौई है, यानी नौइयत बता रहा है कि काम किस तरह हुआ है, एक ख़ास अंदाज है, कारी की तरह मैं बैठा, या ज़ैद की तरह मारा, या सख्त मार मारा, या हल्की मार मारा, तो नौइयत मालूम हो रही है, इसी को मफूल मुतलक नौई कहते हैं। अब उसके बाद देखें, जो मफूल मुतलक फ़अलतुन के वज़न पर हो, या इसका तस्निया हो, या ऐसा इसमें अदद हो जो मस्तर की तरफ या मर्रात की तरफ मुज़ाफ हो, वो मफूल मुतलक अददी होता है। जैसे मिसालें देखिए, अकल तो अकलतन, अकल तो अकलतन, अकल तो अकलतैनी, अकल तो अकलतैनी, अकल तो सलासा अकलातिन, अकल तो सलासा अकलातिन, जा ज़ैदुन अरबा मर्रातिन, जा ज़ैदुन अरबा मर्रातिन। अब देख लें, जो मफूल मुतलक फ़अलतुन के वज़न पर, अकलतुन फ़अलतुन के वज़न पर है, अकल तो अकलतन, मैं एक मरतबा खाया, अकल तो अकलतैन, दो मरतबा खाया, तो अदद मालूम हो रहा है, एक मरतबा, दो मरतबा, अदद मालूम हो रहा है। तो अकलतुन के वज़न पर हो या उसका तस्निया हो, देखिए किताब के मुताबिक अकलतुन के वज़न पर या अकलतुन ही का तस्निया अकलतैनी हुआ, या फिर ऐसा इसमें अदद हो जो मस्दर की तरफ मुज़ाफ हो। देखिए ये है इसमें अदद सलास, ये मस्दर अकलात, मस्दर ही की तरफ, ये अकलतुन ही की जमा अकलात, इसकी तरफ मुज़ाफ हुआ है, तो ये मफूल मुतलक होगा। 3 मरतबा खाया, मैं 3 मरतबा खाया। या फिर मर्रात की तरफ, ये जो अदद होता है इसमें अदद वो मर्रात की तरफ मुज़ाफ हो, यहाँ मस्दर की तरफ मुज़ाफ था इसमें अदद, यहाँ इसमें अदद मर्रात की तरफ मुज़ाफ है। ज़ैद 4 मरतबा आया, तो ये अकलतन मफूल मुतलक, अकलतैनी मफूल मुतलक, सलासा अकलातिन मफूल मुतलक, अरबा मर्रातिन मफूल मुतलक, ये मफूल मुतलक की सूरतें हुई। उसके बाद देखें अब क्या फरमा रहे हैं। और मफूल मुतलक, और जो मफूल मुतलक इनके अलावा हो वो मफूल मुतलक ताकीदी होगा। जैसे नसरतु नसरन, नसरन जो मस्दर है वो ना तो वो फ़िअलतुन के वज़न पर है, ना वो फ़अलतुन के वज़न पर है, ना उसका तस्निया है, ना वो उसकी तरफ इसमें अदद मुज़ाफ हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है, लिहाजा ये मफूल मुतलक ताकीदी है। अब देखिए क़वाइद व फ़वाइद।
नंबर 1, मफ़ऊल मुतलक हमेशा मंसूब होता है, जैसा कि मिसालों से वाज़ेह है, हमेशा मंसूब होता है, ये कोई समझाने वाली बात नहीं है बोर्ड पर। नंबर 2, कभी मफ़ऊल मुतलक महज़ूफ़ होता है और उसकी सिफत ज़िक्र कर दी जाती है, जैसे उज़्कुरुल्लाह कसीरन। ये देखिए कसीरन, ये मफ़ऊल मुतलक नहीं है बल्कि मफ़ऊल मुतलक की सिफत है। यहाँ पर असल में है ज़िक्रन कसीरन, तो ज़िक्रन को हज़फ कर दिया गया। देखिए उज़्कुरु फ़ेल, उसके बाद ज़िक्रन उसी का मज़दर, तो ज़िक्रन हज़फ है, महज़ूफ़ है, कसीरन मज़कूर है। तो वही है कि कभी मफ़ऊल मुतलक महज़ूफ़ होता है, ये मफ़ऊल मुतलक महज़ूफ़ है ज़िक्रन, और उसकी सिफत ज़िक्र कर दी जाती है, कसीरन ज़िक्र कर दिया गया। नंबर 3 देखें, नंबर 3 देखें, बाज़ मफ़ऊल मुतलक के अफ़आल हमेशा महज़ूफ़ होते हैं, जैसे सक़ियन, यानी सक़ाकल्लाहु सक़ियन। अब ये पूरा नहीं बोलना है सक़ाकल्लाहु सक़ियन, सिर्फ सक़ियन बोलेंगे, और वो जो सक़ाकल्लाहु है वो सब महज़ूफ़ रहेगा। हमदन, यानी हमिदतुल्लाह हमदन, सिर्फ हमदन कहेंगे, इसका फ़ेल महज़ूफ़। ऐसे ही शुक्रन, यानी शकरतु शुक्रन, तो शकरतु हज़फ कर दिया गया, तो मफ़ऊल मुतलक ही सिर्फ बोला जाता है, उससे पहले जो फ़ेल है वो नहीं बोला जाता है। तो ये बाज़ मफ़ऊल मुतलक के अफ़आल हमेशा महज़ूफ़ होते हैं, इसमें सक़ियन, हमदन, शुक्रन, ये मिसालें दी गई है, इसको ज़हन में रखें, आगे की किताबों में और भी मिसालें आएंगी। तो ये मफ़ऊल मुतलक का सबक था, इसको आप अच्छी तरह समझ लें और मज़ीद मिसालें आप अपनी जानिब से बना लें, बना सकते हैं, आसान है। पहले उर्दू में आप समझ लीजिए मफ़ऊल मुतलक क्या है, फिर उसके बाद अरबी ज़बान में वो नौइयत वाले, अदद वाले और ताकीद वाले सारे मफ़ऊल मुतलक आप बना लें, और इसकी जो तमरीनें हैं उसको हल कर लें। कुछ सवालात होंगे तो दरसगाह में आपको पूछने पर बता दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।